Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th, biology chapter 14, that is respiration in plants. Student, what is respiration? You know very well, आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम respiration क्या होता है. All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? Students, all living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorptions, transport, movement, reproduction, or even breathing. हमें सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना अपनी पूरी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए, है ना. लेकिन वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी? डू प्लांट्स ईट? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? And microorganisms, for their energy requirements, do they eat food? Students, you may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try to understand how this happens. Students, जितनी भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ की सारी प्रोसेसेस को चलाने के लिए, तो क्या होता है? ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट वी ईट कॉल फूड, जो कि हमारे खाने से आते हैं. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. Only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. Okay, so even in green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. Hence food has to be translocated to all non-green plants. Animals are heterotrophic, that is they obtain food from plants directly or indirectly, right? Saprophytes like a fungi and dependent on dead and decaying matters. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from photosynthesis. So student, this chapter deal with the cellular respiration or the mechanisms of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP, right? For all the cells to perform their vital activities, energy is required. The cells should be able to break down organic molecules, mainly carbohydrates, to release energy. हमारा जो हम फूड खाते हैं जो क्या होता है वो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन होता है. इफ दिस एनर्जी इज रिलीज्ड एट वंस देयर माइट बी ब्रीफ ब्लास्ट ऑफ लाइट एंड हीट क्रिएटिंग अ सीजल इन द साइटोप्लाज्म followed by death. Living things cannot withstand this sudden release of energy, and so the energy rich molecules are made to release energy in a stepwise process. This process of release of energy by breaking down of organic molecules is called the internal tissues or cell respiration. सारी जो हमारी हो रही है वो सेल में हो रही है ना, रेस्पिरेशन जो होती है इसमें प्लांट्स में. The energy released is trapped in chemical bonds of adenosine triphosphate, means ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ATP बनता है. The energy released by non-living system is called a combustion. It is different from cellular respiration in many ways.
The compounds that are oxidized during cellular respiration are called the respiratory substrates. Respiratory substrates क्या होते हैं? Though carbohydrates are the main substrates, fats and proteins are also utilized to obtain energy. The energy released is utilized for various activities of the cells. During respiration, the carbon skeletons produced are used as a precursor for the synthesis of a number of biomolecules. अब बात आती है कि व्हाट इज एटीपी. एटीपी क्या है? देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन कहता है इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ओके, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? सबसे पहले ये हमें पता चलना होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है. द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. किस चीज के लिए? ये एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे. मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किस चीज़ के लिए होता है भाई? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए तो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे. यहाँ पर ईएमपी मीन्स क्या है? बेसिकली दे वर 3 साइंटिस्ट. ओके, तो इन तीनों ने मिलकर प्लांट्स के अंदर होने वाली जो पाथवे है टू ऑब्टेन एनर्जी उसे डिस्क्राइब किया था. दैट्स वाई ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ईएमपी पाथवे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई स्टैंड फॉर एम्बेडेड. यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही ये पाथवे रखा गया, ईएमपी पाथवे. तो एम फॉर एम्बेडेड साइंटिस्ट हैं, उनसे मतलब है. एम फॉर मेरॉफ, पी फॉर पारस से है. ओके, सो वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर? ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में. ओके, और इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, इसलिए ये कैसी प्रोसेस होती है? एनाएरोबिक प्रोसेस होती है. ओके, जब ग्लाइकोलाइसिस की पूरी जो प्रोसेस होती है उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है लास्ट में, एंड ऑफ दिस प्रोसेस? तो इसके रिजल्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं. राइट? इसमें ये जो 2 बनते हैं तो वो क्या है भाई? देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज का क्या है? ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा? जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज जो ये जो पूरी आपकी जो प्रोसेस हो रही है वो हो कहाँ रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है. राइट? ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है आपके साइटोप्लाज्म में. तो ये क्या है? ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल से? भाई 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में. ठीक है, तो 6 कार्बन से क्या होगा? जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप, उसका एटीपी का एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप निकल कर कहाँ आ जाएगा? 6 कार्बन के कार्बन ग्रुप पर जाकर जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप. तो अब क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, और जब एटीपी से जब एक फॉस्फेट निकलेगा, रिड्यूस होगा तो एडीपी पे जाकर जुड़ेगा और ग्लूकोज के 6 कार्बन पर जाकर जुड़ेगा. तो कौन सा एंजाइम इसमें वर्क करेगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम. ओके, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है वो एक्चुअली वो किसी और रिएक्शन में भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है, लेकिन उसको वहाँ पर जाने से रोकने के लिए उसको आइसोमरेज किया जाएगा, मतलब उसे चेंज कर दिया जाएगा, उसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया जाएगा जिससे कि वो इसी रिएक्शन में रहे. ओके, और अब क्या होगा? फिर एटीपी से एडीपी बनेगा तो एटीपी से एक फॉस्फेट मतलब फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में उसका उसमें रोल होता है. वो क्या करता है? एक एटीपी और इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप और निकलेगा और बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. मतलब कार्बन के फर्स्ट नंबर पर जाकर एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और 6 पर तो ऑलरेडी पहले से है ही वो. ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट.
ओके। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, PGA और डाईहाइड्रोक्सी एक्सीटोन 3 फॉस्फेट, उसमें ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें इक्वल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन उधर, है ना। कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंट में, एल्डोलेस और ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, तो क्या बनेगा, PGA और DAP। ठीक है, अब उससे क्या होता है, ये जो आपका फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट जो बना है ये आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी ज़्यादा धोखेबाज निकलेगा। ये कहेगा कि वो कहेगा कि मेरे से आकर जोड़ो, PGA कहता है कि आप मेरे साथ आकर मर्ज हो जाइए, तो बोलता है मैं क्यों होऊंगा मर्ज, मुझे आपसे मर्ज होने में क्या फ़ायदा है। तो वो क्या करते हैं, वो इसको फिर उसको कहते हैं कि भाई अपना इसमें आकर आप मर्ज हो जाइएगा, और तो वो उसको से जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इसका एक कार्बन फिर इसके एक कार्बन से आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 2 हो गए ना, 1 और 1 2 हो गए, और यहाँ पर NADP से NADPH प्लस बनेगा। ठीक है, H आयन प्लस हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अब 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1,3 विस फॉस्फो ग्लिसरेट बन जाएगा। 1,3 मतलब 1 वाली पोजीशन पर और 3rd वाली पोजीशन पर जाकर एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ATP से ADP की फॉर्मेशन होगी, यानी कि ADP से फॉस्फेट जाएगा कहाँ पर, ATP के पास। तो यहाँ अभी तक तो ATP से निकल रहा था फॉस्फेट, अब ATP से यानी कि इसमें जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, वो ATP का फॉर्मेशन होगा, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, डाईफॉस्फोग्लिसरोकाइनेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में। अब बनेगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, यानी कि 3rd नंबर की पोजीशन पे 1 वाला हट गया, वहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ना, 2 से तो हो रहा है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट आपके बने। अब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा इनोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट। इसमें से एक H2O वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ATP की फिर फॉर्मेशन होगी, ADP कि जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ ADP से जाकर जुड़ जाएगा और ATP की फॉर्मेशन होगी। तो ये किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहा है, पाइरूवेट काइनेस एंजाइम्स की प्रेजेंट में। और हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस हो रही है उसके रिजल्ट में हमारे पास आ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, राइट। एंड अब आती है ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज डन टू प्रोड्यूस carbon dioxide and NADH. The reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase required the participations of several coenzymes, including NAD. The acetyl coenzyme enter a cyclic pathway called a TCA cycle and Krebs cycle. अब जो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है कौन से साइकिल में, TCA साइकिल में, है ना। तो उसे हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं और TCA साइकिल भी बोला जाता है। द नेम क्रेब्स साइकिल इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवर सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल का नाम दिया गया इस पूरी साइकिल को, तो क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था कौन सा साइंटिस्ट ने, सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स। तो उनके नाम पर ही इस साइकिल को नाम दे दिया गया क्रेब्स साइकिल, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो ही प्रपोज दिस साइकिल इन 1937 एंड वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस इन 1953। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट बिगिन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड और एज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ना वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इट includes a series of reactions which occurs in the matrix and inner membrane of mitochondria.
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये साइकिल चलती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंड विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से, तो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। द 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर आपके बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन द साइकिल इटसेल्फ टू प्रोड्यूस अ 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस coenzymes A is released from acetyl coenzyme A and the acetyl group combined with the oxalic acid to form citric acid, यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड। Citric acid is then rearranged or isomerized into isocitric acid. Now begin to successive steps of decarboxylations. In this steps 2 molecules of carbon dioxide are produced. Also 2 molecules of NAD plus are reduced to NADH. Isocitric acid is oxidized to alpha ketogluteric acid. Carbon dioxide is removed from alpha ketogluteric acid and the product is combined with coenzyme A to produce succinyl coenzyme A. Coenzyme A is now cleared from succinyl coenzyme A to form succinic acid. It also results in the formation of an ATP molecule. After the formation of succinic acid, 3 more oxidative steps अगर सक्सिनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू फ्यूमेरिक एसिड, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है फ्यूमेरिक एसिड से, ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब क्या फॉर्मेशन होता है NADH2 मॉलिक्यूल्स का। फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NADH फ्रॉम NAD प्लस with the regeneration of oxaloacetic acid. The Krebs cycle begins again. ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो मैंने आपको भी पूरा डिटेल में बताया है, राइट। यही है पूरा का पूरा जो मैं आपको भी बता रही थी क्रेब्स साइकिल के बारे में, कि हमारे पास पायरुविक प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI पायरुविक 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास रिजल्ट में बनेगा क्रेब्स साइकिल के। अब आता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन? देखिए, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में is the name of oxidation found in aerobic respiration that occurs toward end of catabolic process। ये catabolic process होती है एंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं द पैसेज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स of reduced coenzyme to oxygen to produce water, right? So I hope you understand. I hope you understand very well, student. Thank you. Take care.